going to, let's start. Okay, so what we did yesterday, let me share the screen. I hope the screen is visible to you. So these were the causes, ठीक है? Due to increase in money supply, due to the shortage of goods and services, due to higher production costs, due to higher fuel prices, due to international conditions, currency devaluation, governance flaws, political instability, situation with the IMF demands, all of these result in what? All of these are the drivers that contribute towards inflation in Pakistan. Okay, so what will be the possible way forward? Possible way forward will be, let me just write down the agenda. We have to discuss the recommendations quickly. Then we have to discuss a bit about the future outlook. And a very important part is the references thing. Okay, how to add references? What are the references? References में काफी सारी चीजें हैं. What, how, so on and so forth. ठीक है. So this is what we are going to be discussing. This will be our agenda for today. ठीक है. अच्छा. If I come towards the recommendations or the way forward. So basically, recommendations to tackle inflation challenge in Pakistan. When you'll address the ills of Pakistan's economy, सुरानी कौन सी वाली last slides? वो कल का lecture था, ठीक है? If you missed the lecture, I will be providing the recording for that. Today is the second part of that lecture, and that's what we are discussing today. अच्छा, होता क्या है आपके पास कि आपके जो सिस्टेमिक लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रैपल करते हैं, कल भी जब हमने इन्फ्लेशन को डिस्कस किया था तो वी डिस्कस दिस के inflation is basically such an issue, such a persistent issue in Pakistan's economy कि बाकी सारे issues somehow they are the causes of inflation in Pakistan, and they are linked, all other economic issues are linked to this persistent issue of inflation in Pakistan. Okay, so basically what then the government can do is that it should have to adopt effective monetary policies. अच्छा, फिर आपके पास क्या होगा कि गवर्नमेंट को जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है उसमें आपने what can the government do? The government has to aim to control the inflation. Then government has to improve its monitoring systems. Government has to track imports and exports, reducing trade deficit. अब trade deficit को कैसे reduce करना है, that's another topic, और ये हम अपनी regular classes में in detail discuss कर रहे होंगे, ठीक है? And government has to control
movement of currency. ठीक है. अच्छा, what else? We also discussed the production costs. तो production costs में क्या हो रहा है? Obviously, government has to control the cost of production. Acha, what can the government do in this regard? There needs to be कल भी ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है that needs to be less in certain markets. ठीक है. और open market for agricultural products, specifically wheat, sugar. ठीक है. फिर आपके पास है availability plus affordability of seeds, fertilizers, pesticides. If these are short, if these are expensive, then the cost of production will automatically be expensive. ठीक है. अच्छा, फिर आपके पास क्या होता है? Cost of production, specifically agricultural production के लिए, या food security या food inflation को address करने के लिए, water shortage needs to be addressed. अच्छा, अब water shortage को कैसे करना है? Through water conservation techniques. ठीक है. और आपके पास जो है बेसिकली जो है क्या होगा कि जितनी ज्यादा आप इनोवेशन लेके आएंगे फॉर वाटर कंजर्वेशन, फॉर एग्रीकल्चर, दैट वुड बी benefiting the agricultural production, that will be impacting the agricultural production, and it will in turn आपके पास क्या करेगा? reduce करेगा cost of production as well. ठीक है. अच्छा, फिर आपके पास there needs to be, हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट रेलेवेंट शॉक्स को. तो जो क्लाइमेट रेलेवेंट प्रोडक्शन शॉक्स हैं, what are you going to do about that? There needs to be R&D plus there needs to be innovation. ठीक है. R&D and innovation चाहिए आपको in fields of climate plus agriculture. ठीक है. ट्रेड डेफिसिट से, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को ट्रैक करने से आपकी वो जो ऑयल रिलायंस है वो वहां पे इन्फ्लेशन कम होगी. जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, जो आपके फूड आइटम्स हैं, उनकी इन्फ्लेशन को अगर टैकल करना है तो एग्रीकल्चरल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी को आपने ठीक करना है. और आपने क्लाइमेट, अब मैंने कहा इनोवेशन इन क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर, दैट मीन्स दैट you have to the government at the state level has to promote climate friendly or the climate smart agriculture. ठीक है. And obviously there needs to be development of infrastructure for that as well, for proper water conservation techniques के लिए, storage of agricultural produce के लिए, so on and so forth. ठीक है. इसी तरह से if we take this a bit further, हमने कुछ गवर्नेंस फ्लॉज को भी डिस्कस किया था. तो गवर्नेंस फ्लॉज क्या कहते हैं कि आप इफेक्टिव चेक्स एंड बैलेंसेस हों, प्लस कोऑर्डिनेशन हो between center and provinces. जो आपके पास एंटायर बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो आपके पास जो है हार्मफुल प्रैक्टिसेस हैं, such as hoarding, etc., such as high prices,
वो क्या हो, वो डिस्करेज हो, उन पे चेक एंड बैलेंस हो, ठीक है। और फिर आपके पास जो है, जो आप हर गवर्नमेंट, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इनफैक्ट आपके पास जो फूड स्टॉक करती है, वो फूड स्टॉक और रिलीज जो है वो इस सेंस में हो कि वो आपके पास फूड की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करे। टाइमली रिलीजेस ऑफ द फूड दैट इज स्टॉक्ड, फॉर एग्जांपल द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दैट इज स्टॉक्ड, उससे क्या होगा कि देयर विल बी वो जो सप्लाई एंड डिमांड का इशू है वो क्रिएट नहीं होगा, और आपकी कॉस्ट्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, और वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट्स हैं वो 5 मेजर एरियाज को टैकल करती हैं। मैं भी स्लाइड पे वापस आती हूँ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने भी, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट focuses on 5 key areas to address inflation in Pakistan. ठीक है. What are those key areas? Number one is World Bank suggests to improve monitor Okay, number one is improving monitoring and forecasting system and coordination among institutions. Acha, what does the World Bank specifically suggests in improving? Basically, आपने क्या करना है कि आपने अपने जो फोरकास्ट सिस्टम्स हैं, आपने जो अपने आपकी जो लोकल प्रोडक्शन और कंजम्पशन है, आपकी जो ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड में चेंजेस हैं, आपने वो तमाम चीज़ें मॉनिटर और फोरकास्ट करनी है। और जो जो आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो डेडिकेटेड हैं फॉर मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सच situations, they need to improve their coordination. Only then आपके पास क्या होगा कि जो है आप essential foods की प्राइसेस में जहाँ चेंजेस आ रही हैं, अगर एसेंशियल फूड्स की प्राइसेस, एसेंशियल फूड क्रॉप्स को कोई चीज हर्ट कर रही है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी बेटर प्रिडिक्टेड, दे कैन बी प्रिडिक्टेड यू नो इन एडवांस। और राइट नाउ जो गवर्नमेंट के इंटरनल मैकेनिज्म्स हैं, जो असेसमेंट्स हैं, जो मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम्स हैं, दे हैव अ वेरी पुअर स्ट्रक्चर। सो देयर इज अ नीड के आपके पास जो है कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। आपकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च विंग है, आपके पास जो आपकी एनडीएमए की अथॉरिटीज हैं, तो ये तमाम जो है ऑर्गेनाइजेशंस, इफ दे इम्प्रूव जो है monitoring, forecasting and coordination systems, if they introduce certain checks and balances. For example, Punjab government has recently launched an app which is known as कीमत ऐप। अब कीमत ऐप क्या करती है? कीमत ऐप आपको प्राइस इंफॉर्मेशन बताती है, नॉट जस्ट फॉर द बायर्स बट जो सेलर्स होते हैं उनके लिए भी, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि फार्मर्स आर द मेन सेलर्स but they do not get the profit, instead the middleman gets the profit. So this app tells the prices set by the government, not just for the buyers but for the sellers as well, ठीक है। So this is one way.
अच्छा, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अभी हमने एक वे फॉरवर्ड की बात की. वर्ल्ड बैंक ऑल्सो टॉक्स अबाउट दैट कि देयर इज नीड टू प्रमोट हाई वैल्यू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. ठीक है. अब हाई वैल्यू क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या करेगा? वो बेसिकली आपके पास फूड प्रोडक्शन को इम्प्रूव करेगा विद इन पाकिस्तान. आपके पास जो because it's not just about wheat and the major crops. It's not just about cotton, wheat or sugar. Pakistan has a very vast dairy industry as well, livestock industry as well. ठीक है. तो and what we do is that Pakistan has to import the dairy products. ठीक है. तो क्या होता है कि पाकिस्तान हैज टू इम्पोर्ट अदर एसेंशियल फूड आइटम्स एज वेल. ठीक है. सो आपके पास क्या है कि इंस्टेड के पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट्स को यूटिलाइज करे फॉर एक्सपोर्टिंग दीज थिंग्स, फॉर एक्सपोर्टिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, फॉर एक्सपोर्टिंग योर एसेंशियल फूड आइटम्स, फॉर एक्सपोर्टिंग द डेयरी प्रोडक्ट्स. इंस्टेड पाकिस्तान हैज टू इम्पोर्ट. और जब पाकिस्तान इम्पोर्ट करता है तो again it depends upon foreign currency, it depends upon Pakistan has then dependency on the international markets. और वहाँ की जो fluctuations हैं, जो आपकी currency devaluation है, वो सारी चीजें reflect करती हैं in the form of high inflation. ठीक है. So upgrading the agricultural practices, upgrading the agricultural mechanisms, utilizing more effective production technologies, R&D for better crops, climate resilient crops, so on and so forth. All of that will result in what? It will result in it will improve the production, and that will result in lower costs, lower prices for the common man. ठीक है. अच्छा, देन स्पेसिफिकली जो सेक्टर हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वी डिस्कस दिस एज अ चैलेंज कि आपके पास क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी अनड्यू इंटरफेरेंस है इन सर्टेन मार्केट्स, स्पेसिफिकली इन द मार्केट्स ऑफ शुगर एंड व्हीट. ठीक है. और जो गवर्नमेंट पैट्रनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं टू टॉप इट ऑल ऑफ, वो भी इन सेक्टर्स में है. तो होता क्या है कि आपके पास जो रेस्ट ऑफ द हाई यील्डिंग या ऑल्टरनेटिवली जो हाई यील्डिंग क्रॉप्स हो सकती हैं, दे सफर एज वेल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट प्रैक्टिसेस. ठीक है. और आपकी जो शुगर प्रोडक्शन है on the other hand, वो क्या करती है कि it has it is heavily reliant on water, number one, for instance. फिर आपके पास क्या है कि जो शुगर प्रोडक्शन है उसकी itself जो कॉस्ट है प्रोसेस की, that is high. तो in order to bring competition into the sugar sector, there needs to be establishment of the new sugar mills. There needs to be opening up of the sugar sector, and there needs to be mechanisms जो ensure करें timely payment to the farmers. ठीक है. तो वो सब क्या होगा? By liberalizing the sector, by introducing competition in the sugar sector, so that आपके पास जो है ultimately the prices could be reduced, और जो domestic markets की fluctuations हैं उनका common man पे जो है वो असर ना हो. ठीक है. So these are the things. आप लोगों के messages आ रहे हैं. I'll उनको जरा बाद में देखूंगी. ठीक है. अच्छा, फिर fourth is along with sugar we have to reform the state has to reform the wheat procurement system as well. और
होता क्या है कि अगर हम recently we have seen very disturbing, pictures. We have seen very disturbing scenes where people have literally died in the race to get free atta, free roti. ठीक है? तो because wheat is our major crop, wheat is not just the major crop, but it is a staple food for Pakistan as well. और अगर wheat की प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ता है तो इट्स लाइक आपके पास बिल्कुल डायरेक्टली वो प्रेशर किस पे आता है, वो एक पुअर क्लास पे आता है, वो कॉमन मैन पे आता है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ने आपके पास ये प्रोग्राम सेट किया कि जो वीट की प्राइसेस होंगी मार्केट में वो उनको स्टेबलाइज करेगी। ठीक है, बट सो फार the consumers and the wheat producers or the farmers are not getting that benefit. Instead, the middlemen are getting the benefit. ठीक है, so there needs to be reforms in the wheat market. There needs to be increasing role of private sector in the wheat market, and there needs to be a more targeted help for the wheat producers or the farmers. ठीक है, unless and until that is done, जो आपके पास गवर्नमेंट है वो वीट की शॉर्टेज को एंड इन रिटर्न वीट की और फ्लावर की हाई प्राइसेस को जो है ना कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अच्छा, अबव ऑल दैट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वी हैव डिस्कस द टेक्निकल मेजर्स, ट्रेड डेफिसिट को देखना है, इंपोर्ट्स को देखना है, फोरकास्टिंग सिस्टम को देखना है, अपने एग्रीकल्चर को देखना है, क्लाइमेट को ठीक करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ओवरऑल गवर्नेंस को ठीक करना है, कोऑर्डिनेशन को ठीक करना है। बट एवरीवेयर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट एवरीवेयर, आपके पास क्या होता है कि many other countries, many other states में ये प्रैक्टिस है कि they protect the vulnerable। ठीक है, they protect the livelihoods of those that suffer the most। ठीक है, तो क्या है social protection? Social protection, social safety nets is another way to at least mitigate the effects of inflation on those classes that are impacted most by the inflation such as जो आपके पास short term inflation हो जाती है, food inflation हो जाती है, तो आपकी वो classes जो high prices की वजह से सबसे ज्यादा सफर करती हैं, उनके लिए what government can do is कि गवर्नमेंट जो है वो उनके लिए सोशल प्रोटेक्शन और सोशल सेफ्टी नेट्स को मजीद कम्प्रिहेंसिव बनाए। राइट नाउ इन वोग जो पाकिस्तान में है, there is SARS program, there is Benazir income support program, there is this Sehat card. So these are all social protection measures, and in addition to other technical measures, the government needs to continue to basically provide these social protection measures so that जो high food prices हैं, जो high commodities की prices हैं, उनके impacts को जो है वो mitigate किया जा सके। ठीक है, so this is what it is. This is how you can basically discuss various recommendations for for this topic. Yes, their competitive commission of Pakistan है, जो आपके पास sugar cartels हैं, they can be dealt with them. Dr. Amir is saying that you are a medical student. I should add you in the group. Sure. Avais, class started from recommendations because, in fact, the class started from something else, but I think you joined late. यस, ट्रेड डेफिसिट जो है वो क्या होता है, वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को का इम्बैलेंस जो है वो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है।
अच्छा बच्चों, लेट मी शेयर माय स्क्रीन और हमने नेक्स्ट जो चीज डिस्कस करनी है दैट इज द फ्यूचर आउटलुक। फ्यूचर आउटलुक को डिस्कस करके सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं, द वन दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, और रेफरेंसेस को डिस्कस करूंगी इन डिटेल। आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दोस। अच्छा बच्चों, होता क्या है फ्यूचर आउटलुक, क्या है बेसिकली इन्फ्लेशन के हवाले से? व्हाट डू यू पीपल थिंक? व्हाट इज योर ओपिनियन? पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी कर लेते हैं, डोंट वरी। Yes, basically the lecture started yesterday. Today is the part 2. There's nothing on slide 1. जाहिद अभी से प्रिपेयर करें ताकि बाकी चीजों में हेल्प आउट हो। अच्छा, it may increase, it will increase. I asked a question. You people are countering me with other questions. Numan is saying inflation will raise. Okay, good, Numan. Yes. तो आपके पास how will we say कि इन्फ्लेशन रेज कर रही है कि नहीं कर रही है? ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट ट्रेंड्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन हमने कुछ सॉलिड रेफरेंसेस हैं जो मेंशन करने होते हैं, जो लिखने होते हैं। तो आपके पास यूनाइटेड नेशंस का मिड ईयर सर्वे है, यूएन मिड ईयर सर्वे। अच्छा, और यूएन का जो मिड ईयर सर्वे है वो क्या कहता है? As per the UN mid-year survey report, ये क्या हो रहा है? अच्छा बच्चों, एज पर द यूएन मिड ईयर सर्वे रिपोर्ट आपके पास क्या है कि ये जो यूएन की मिड ईयर सर्वे रिपोर्ट है, इसने फोरकास्ट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन को, एंड ऑब्वियसली इसने फोरकास्ट किया डिफरेंट कंट्रीज की जर्नी को। ठीक है, सो एज पर दिस रिपोर्ट forecasted that the inflation rate in Pakistan is expected to remain in double digits, और उसका सबसे जो आपके पास मेजर रीजन है वो है वीकनिंग ऑफ पाकिस्तान लोकल करेंसी एंड ओविंग टू दी सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो मिड ईयर रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन is expected to remain in double digits for now. ठीक है, why it says so? Because of the weakening of Pakistan's currency and certain supply side constraints. ठीक है, this is what UN survey report says. ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि since this report is predicting the economic conditions globally, वर्ल्ड इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रिडिक्ट कर रही है और स्टडी कर रही है, तो ये रिपोर्ट यही फोरकास्ट करती है कि आपके पास इंक्लूडिंग पाकिस्तान इन मेनी कंट्रीज क्या होगा, स्पेसिफिकली जो फूड और जो एनर्जी प्राइसेस हैं दोज विल रिमेन हाई। ठीक है, और ऑल्दो जो इसने ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रोडक्शन प्रिडिक्शन की है, दैट इज इम्पॉर्टेंट एज वेल, कहीं आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इट सेज दैट द एवरेज global inflation
Average global inflation for the year 2023, that would be 5.2%. ठीक है? And it has come down from the year 2022 where it was 7.5%. ठीक है? तो this report says कि overall global inflation थोड़ी सी ease down हुई है. Overall food और energy prices थोड़ा सा ease down हुई हैं, but still inflation in most of the countries, including Pakistan, will be above the central bank's target. They will be continue to remain in the double digits. ठीक है? कल भी हमने देखा था कि आपके पास जो इन्फ्लेशन है, इट वाज जो आपकी गवर्नमेंट प्रोडिक्शन थी, गवर्नमेंट वांटेड इन्फ्लेशन टू बी अराउंड 11.5% तक लाना चाहती थी, बट आपके जो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स थे, जो आपके सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक के टारगेट्स थे, inflation exceeded that, and it was around 29% if I'm not wrong. ठीक है? तो क्या है कि global inflation has come down a little bit, but still आपके पास जो inflationary pressures हैं for countries like Pakistan, they will continue to exist. और आपके पास क्या होगा कि inflation will continue to remain in double digits. ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं फॉर पाकिस्तान इन्फ्लेशन, दे कम आउट फॉर 2023 टू बी एट 20.6%. सॉरी, फॉर द नेक्स्ट fiscal year, for the next fiscal year 2024, inflation to clock at 20.6%. ठीक है? तो क्या हो रहा है? As per this report, आपके पास inflation fiscal year 2024 के लिए it will be around 20.6%, which is obviously a double digit. और although अभी आपके पास IMF का पैकेज आया है, although आपके पास जो आपके friendly countries हैं, उनकी सपोर्ट आई है, but because Pakistan has been facing a balance of payment crisis, because Pakistan was very close to go for a debt default. तो under these conditions आपके पास क्या है कि the pressures may ease a bit, but still आपके पास inflation will be close to a very high figure of 20.6%. ठीक है? अच्छा, ओवरऑल अगर हम रीजन वाइज देखें तो आपके पास जो रीजनल एवरेज है, दैट इज आल्सो नॉट वेरी प्रॉमिसिंग. और रीजनल जो फूड इन्फ्लेशन के स्टैट्स हैं, वो क्या कहते हैं? रीजनल फूड इन्फ्लेशन के स्टैट्स ये कहते हैं कि फॉर साउथ एशिया आपके पास क्या होगा? साउथ एशियन कंट्रीज, particularly Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. यहाँ पे आपके पास क्या होगा? Domestic food inflation will remain elevated. ठीक है? और ये आपके पास किसकी रिपोर्ट है?
लेट मी राइट इट डाउन, मैं इन चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, एंड दिस इज एज पर द रिपोर्ट ऑफ ठीक है, तो यूएन की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एज ऑफ मिड 2023 रिपोर्ट के स्टैट्स की प्रेडिक्शंस आपको क्या बता रही हैं कि एवरेज ग्लोबल इन्फ्लेशन रहनी है at 5.2% और पाकिस्तान's inflation will be double digit. To be more specific, आपके पास जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है that will be around 20.6%. और आपके पास जो साउथ एशिया में फूड इन्फ्लेशन है that will remain high. और जो फूड सिक्योरिटी सिचुएशन है that will be challenging for countries, South Asian countries, specifically for Pakistan, Afghanistan and Bangladesh. ठीक है, so depending upon these things, depending upon और analyzing, इसको हम conclude कैसे कर सकते हैं कि अगर हम एनालाइज करें पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स को, अगर हम एनालाइज करें उनके द टाइम इट विल टेक टू एड्रेस द लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, जिससे इन्फ्लेशन की सिचुएशन बेटर हो सकती है, we can safely say कि Pakistan's inflation will be problematic in the near future, and in order to tackle this persistent issue of inflation, long-term reforms and a seriousness and will from the government side and a political continuity and stability is needed, ताकि आपके पास जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो ईज डाउन हो सके। यहाँ तक बात समझ में आती है? फूड इन्फ्लेशन इज पर्टिकुलरली, तारिक, आपके पास क्या है, जो आपके पास लेवल ऑफ इंक्रीज होता है इन द प्राइसेस ऑफ फूड दैट यू कंज्यूम। ठीक है, CPAC projects will be beneficial to combat energy crisis. Yes, they will be. IMF program is a major source. इसको हम बड़ी डिटेल में हमजा कल डिस्कस कर चुके हैं। गुलाम मोहम्मद वो शेयर हो जाएंगी। यस, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी और ये सब चीजें हैं। यस एग्जैक्टली सोनिया, दैट्स व्हाट आई हैव सेड कि आपके पास जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी until and unless वो अचीव होती है तो आपके पास क्या होगा, इन्फ्लेशन इज विल कंटिन्यू टू परसिस्ट। यहाँ तक बात समझ में आती है? फॉर दोज पीपल जो कल से लेक्चर ले रहे हैं, जिन्होंने आज का सिर्फ लेक्चर लिए, दे विल हैव टू बी पेशेंट। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो तो बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड है और उसमें आप लोगों को मसला नहीं होगा, बट फॉर टू मेक सेंस ऑफ टुडेज टॉपिक यू विल हैव टू basically watch the recordings and go through the notes of the yesterday's lecture. Only then today's lecture will make sense to you. यहाँ तक ओके हो गया या नहीं? हमजा डेफिनेटली फ्लो चार्ट तो बनाना ही है।
कोई भी आपके पास जैसे जैसे हमारी क्लासेस प्रोग्रेस करेंगी इंशाल्लाह मैं पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स पे और ज़्यादा बात करूंगी, लेकिन जो कुछ मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रही हूँ उसका मकसद ही ये है कि यू पीपल हैव टू इंक्लूड दीज प्रेजेंटेशन टेक्निक्स इन योर एग्जाम एज वेल, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आई कुड हैव जस्ट रेड थ्रू दी पावर पॉइंट स्लाइड्स, आप भी बोर होते, मैं भी बोर होती और क्लास का टाइम खत्म हो जाता है, एंड दैट वुड बी इट। अगर इफ आई एम राइटिंग ओवर हेयर और अपनी प्रेजेंटेशन को विजुअली अपीलिंग बना रही हूँ, सो इट्स अ क्लू फॉर यू पीपल कि आपने भी अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को विजुअली अपीलिंग बनाना है और विजुअल क्यूज को, विजुअल प्रेजेंटेशन टेक्निक्स को जरूर यूटिलाइज करना है जो है while attempting the paper, ठीक है। Yes, whiteboard is the best term, that's why I do this. नहीं जैन, ऐसा कोई नहीं है, रिकमेंडेशंस के बाद भी आप फ्यूचर आउटलुक को डिस्कस कर सकते हैं। पहले डिस्कस करनी है पहले कर लें, देयर इज नो यू नो कोई ऐसा उसमें वो बात नहीं है। हमजा, प्रॉपर क्वेश्चन विल बी कि कैन वी मेक अ फ्लो चार्ट ऑन इन्फ्लेशन, ठीक है। Your expression is not right. Your analysis and vocab is remarkable. Can you please share the tip to deconstruct the topic and statement? Inshallah, Bakar, I'm just going to do that. Numan, IMF relevant जो चीज है ना, IMF is basically IMF की वर्किंग को समझने के लिए इट्स बेसिकली अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो आपके सोशल सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर के लिए नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा उसके लिए आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझना पड़ेगा। होपफुली होपफुली आप, बिकॉज यू आर इन द बैच, तो आपका ये क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड इन्फ्लेशन पे बिल्कुल लास्ट ईयर में भी ज्यादा एक्सपेक्टेड था बट नॉट दिस ईयर, ठीक है। अच्छा, सुरानी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ही इज आस्किंग अबाउट द ऑथेंटिक सोर्सेज एंड दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन एज वेल। क्विकली वी विल बी डिस्कसिंग दैट। दिस इज द स्लाइड नंबर 1. This is slide number 2. अवैस 5% इन्फ्लेशन कौन सी होती है? इसको इसको थोड़ा इलेबोरेट करें अपने क्वेश्चन को। दिस इज स्लाइड नंबर 3. Okay. References to consider. Do I have the attention of everyone? I will highly encourage कि एक ही दफा इन चीजों को सुने, समझें और मैं इनको ताकि बार बार रिपीट ना करूं, ठीक है। Is Suhail with us in the class? I'm going to suggest books, don't worry. R&D is research and development. वैसे बताती हूँ क्या बनता है उसका। Suhail is with us. Good. ठीक है Suhail, your question most probably will be answered inshallah today, ठीक है। अच्छा बच्चों, रेफरेंसेस में अब आपने क्या करना है, एक चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें भी 2 लेवल्स आ जाते हैं। कुछ आप में से बिल्कुल बिगिनर्स हैं। जो बिगिनर्स हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? और आपके पास दूसरे लोगों को क्या कहूँ, माशाल्लाह जो चीते हो गए हैं सीएसएस के, उनको क्या कहूँ? You know, those who are appearing for the second time, those who are appearing for the third time, those who are appearing for the fourth time in, you know, special CSS may, you know, there may be people who are appearing for the fourth time.
गुरुज हैं वो, रिपीटर्स हैं, अच्छा सा कुछ कहें, स्ट्रगलर्स, बिल्कुल सोनिया ने दिल की बात कही है, बट टाइगर्स मैं तो उनको बिल्कुल चीते ही कहूंगी, ठीक है, सीएसएस टाइगर्स हैं वो। सो एक साइड पे बिगिनर्स हैं, दूसरे साइड पे हैं सीएसएस टाइगर्स, टाइगर फोर्स। अब जो बिगिनर्स हैं ना, उन्होंने एक टॉपिक को समझना है। फॉर इंस्टेंस, इवन जो अभी कल से हमने क्लास ली है, बिकॉज इट वाज अ डेमो क्लास, इट वाज एन ओपन क्लास, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाते हैं, फिर मैं हर एक पॉइंट की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती, जैसा कि मे बी मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में जाऊंगी, बिकॉज वहां पे मेरे पास टाइम होगा, ठीक है, कि आपके क्वेश्चंस को, कंफ्यूजन्स को एड्रेस करें, एक टॉपिक को बेसिक लेवल से स्टार्ट करें, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अगर किसी भी टॉपिक की आपने बेसिक समझनी है, कोई इट्स अ नो ब्रेनर कि व्हाट विल यू कंसल्ट, यू विल कंसल्ट यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब को कंसल्ट करना है फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स। कोई भी आप अगर लिखे ना, बेसिक्स ऑफ, let's suppose you write meaning of geopolitics, yeah, you say you type that understanding the basics of geopolitics, understanding the basics of Indo-Pacific situation, anything, ठीक है। तो जो भी prompt आपका होगा, आपको YouTube पे क्या होगा, आपको उसकी बेसिक्स समझ आ जाएंगी। फिर ये बेसिक्स आप किसी भी लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। जिन लोगों को थोड़ा लैंग्वेज का मसला है, उर्दू में स्पेसिफिकली जो इंडियन चैनल्स हैं, उनकी उनकी बहुत अच्छी वो होती है, आपके पास ना जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो बहुत अच्छी डेवलप करते हैं, ठीक है। तो एनीवेज, बिगिनर्स के लिए जो सबसे फर्स्ट रिसोर्स है फॉर मी, बिकॉज अभी ये होता है कि मैं काफी क्वेश्चन स्टूडेंट से डिस्कस कर रही होती हूँ, सो दे वांट वो एक हाथ पकड़ के चलने वाली बात है, तो मैं उस तरह से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ कि बिगिनर्स ने क्या करना है, कि सबसे पहले उन्होंने यूट्यूब को कंसिडर करना है। यूट्यूब से क्या मिलेगा आपको, बेसिक्स मिलेंगी, ठीक है। सीएसएस टाइगर्स जो हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने यूट्यूब के स्पेसिफिक चैनल्स को देखना है। वो क्या चैनल्स हैं वो भी बताऊंगी, ठीक है। अभी प्रोसेस समझ लें, फिर चैनल्स बताऊंगी, वेबसाइट्स बताऊंगी, जर्नल्स बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। यूट्यूब के स्पेसिफिक चैनल्स क्यों, क्योंकि यूट्यूब के स्पेसिफिक चैनल्स हो सकता है कि वो बेसिक्स की बात ना कर रहे हूँ, लेकिन जो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट चल रही है वो मे बी उसकी बात कर रहे हूँ, ठीक है। तो चीतों ने वो कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट समझनी है। लेट्स सपोज सऊदी ईरान का टॉपिक है, तो आपने कंटेम्प्रेरी जो सऊदी ईरान की डायनामिक्स हैं, जो उसके जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स हैं, आपने वो समझने हैं। आपने ये नहीं समझना कि पास्ट में सऊदी ईरान की क्या डायनामिक्स थे या जियोपॉलिटिक्स होती क्या है, ठीक है। तो ये चीजें इफ दीज आर क्लियर टू यू, तो आपने स्पेसिफिक चैनल्स पे जाके वो चीजें सुननी है, उनकी पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। पॉइंट्स कैसे नोट डाउन करने हैं, just bullet points, no sentences at all। मैं अब I used to prepare it with my friend, और हम तो एक दूसरे पे चेक रखते थे कि कोई prepositions, कोई ifs, buts, and, are उस हमारे नोट्स में यूज ना हो, ठीक है। आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स को नोट करना है, एज सिंपल एज दैट। जितने भी सिंपल हो सकते हैं ना, उतने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद रिसर्च पेपर्स। रिसर्च पेपर से भी पहले हम लिखते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आपको सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। अभी मैं उस पर भी आऊंगी कि 30 मिनट्स में, 2 आवर्स में कैसे इन चीजों को कंपाइल करना है, ठीक है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दोनों के लिए हैं, for beginners as well and for the cheetahs as well। और if you people अभी तक भी अगर किसी को चैन नहीं आया, तो लास्ट ईयर के जो इंग्लिश ऐसे का पेपर है, करंट अफेयर्स का पेपर है, उसको उठा के देख लें। आई डोंट थिंक सो जितने सवाल डॉन में से आए हैं किसी में भी आए हो, ठीक है। तो डॉन में कौन कौन से कॉलम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। सोशल इश्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो सोशल इश्यूज पे जो हो, इकोनॉमिक इश्यूज पे जो आर्टिकल्स हो, आपके पास फॉरेन पॉलिसी पे जो आर्टिकल्स हो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपके पास जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आर्टिकल्स हो,
ठीक है, तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेट सपोज डॉन में कोई चीज नहीं मिल रही, तो अदर देन डॉन ऑब्वियसली यू कैन कंसिडर ई ट्रिब्यून, and sometimes, only sometimes, you can go for Friday Times। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी आपको ना स्टेटमेंट्स मिल जाती हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने करना क्या है, वेदर इट इज द बिगिनर्स और वेदर इट इज द रिपीटर्स, ठीक है, एक मिनट के लिए जो है सिर्फ अपने इनको होल्ड करके रखें। जी, जो कंसिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं और जो बिगिनर्स हैं, what are they going to do? बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि एज इट इज हेडिंग्स को उठाना है। एडिटोरियल की काफी दफा बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हेडिंग्स आई हुई होती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज पे, फॉरेन पॉलिसी पे जब मलिहा लोधी लिखती हैं, अफगानिस्तान पे जब जाहिद हुसैन लिखते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे किसी ने लिखा है, सोशल इश्यूज पे किसी ने लिखा है, तो वो हेडिंग्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। You people have to pick up those headings as it is. So number one point क्या है, you have to pick up the headings. Pick up those headings, use them in your notes. And then what you have to do is you have to, I don't know, however you memorize it, आप किसी को पढ़ा के आपको memorize होता है, क्रैम करके memorize होता है, बार बार उस heading पे वापस आके उस topic को पढ़ने से आपके दिमाग में वो चीज retain होती है। whatever whichever way is suitable to you, what you have to do is that you have to pick up those headings as it is। और headings के साथ साथ sometimes there are very interesting expressions that are used। अब आपने exact उसके एक एक sentence को नहीं उठाना, लेकिन कुछ expressions हैं, कुछ terms हैं। एक्सप्रेशन से मेरा मतलब है कि वो कोई एक फ्रेज भी हो सकता है या वो एक सिंगल टर्म भी हो सकती है, ठीक है, वो आईआर से रेलेवेंट होगी, वो पॉलिटिकल साइंस से रेलेवेंट होगी, वो आपकी इंटरनेशनली जो है वो कोई किसी थ्योरी से रेलेवेंट होगी, व्हाट्सएवर। तो उन टर्म्स को, उन एक्सप्रेशंस को भी आपने अपने नोट्स में नोट डाउन करना है, ठीक है। So that is how you can extract the information from the newspaper articles. After the newspaper articles, what you can do is you can go towards research magazines, ठीक है, और ये क्या होंगे, ये डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल होंगे, ठीक है। देयर इज अ लिस्ट, और मैं वो सारी बताती हूँ, वो लिस्ट भी, वो सोर्सेज भी सारी की सारी बता देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, सिमिलरली फॉर द बिगिनर्स एज वेल, जब उन्हें यूट्यूब से कुछ चीजें समझ आ जाएं तो फिर वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और उसके बाद आएंगे वो रिसर्च मैगजीन्स पे, जो कि फॉरेन मैगजीन्स भी होंगे और जो डोमेस्टिक आपके जो मैगजीन्स हैं वो भी होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपने करना क्या है कि आपने जो है even before picking up these headings and even before picking up the terms and expressions, आपने क्या करना है, नंबर वन थिंग, जब भी आप किसी टॉपिक पे बैठेंगे तो आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। एंड प्लीज, व्हेन आई एम स्टेइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, आई literally mean that you people have to use your own brain, and trust me, you know all these things। आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, आपके पास एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड आपने उस सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना है। अभी अभी हम बड़े एक स्पेसिफिक टॉपिक पे थे, अभी जैसे हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे, तो इन्फ्लेशन की अगर मैं इम्पैक्ट्स को आज आपको पढ़ाती, तो मैं सिर्फ उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पे बात नहीं करूंगी, मैं उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स पे भी बात करूंगी, मैं उसके जेंडर एस्पेक्ट पे भी बात करूंगी, मैं उस की सोशल इम्पैक्ट सच एज एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है, चाइल्ड लेबर पे क्या असर पड़ता है, चाइल्ड एजुकेशन पे क्या असर पड़ता है, ऑल ऑफ दीज इम्पैक्ट्स पे मैं बात करूंगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इवन फॉर इंग्लिश ऐसे, इवन फॉर करंट अफेयर्स, पहले आपको थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। बहुत ज्यादा एग्जैक्ट चीजों का पता होना जरूरी नहीं है, स्पेसिफिकली फॉर द रिपीटर्स, फॉर द टाइगर्स, you know the things, what you have to do is you have to relate them, and you have to relate them from every aspect। जब हम बात करते हैं ना कि आपने किसी क्वेश्चन को एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है, तो क्या मतलब होता है कि हर, आई होप सो सबाहत इज लिसनिंग टू मी, आपने हर
हर पर्सपेक्टिव को देखना है, हर सेक्टर को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर हमने फ्लड्स का टॉपिक पढ़ा था, तो फ्लड से सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे फर्क नहीं पड़ा, या फ्लड से सिर्फ डैमेज या डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, बल्कि फ्लड से आपके पास क्राइम रेट भी इंक्रीज हुआ, फ्लड से आपके पास पॉवर्टी भी इंक्रीज हुई, फ्लड से आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस भी इंक्रीज हुआ, फ्लड से आपके पास जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू असेस वन टॉपिक, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि चाहे उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो या ना हो, किसी भी टॉपिक को जब भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपने उसकी ये तमाम डायमेंशंस देखनी है। पॉलिटिक्स, just write them down. You have to think about politics, you have to think about social aspects, you have to think about environmental aspects, economic aspects, gendered aspects, criminological aspects, sociological aspects, ठीक है। तो ये तमाम चीजें एक टॉपिक के हवाले से आप लोगों ने देखनी है। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि अच्छा यार, मैम कह रही हैं कि इन्फ्लेशन का जेंडर इम्पैक्ट है। अब वो जेंडर इम्पैक्ट तो मुझे पता नहीं है, तो उस जेंडर इम्पैक्ट को सर्च करने के लिए आप गूगल पे लिखेंगे, जस्ट लिटरली राइट इन्फ्लेशन, impact of inflation on gender, any stats, and you will be getting a report, you will be getting a case study, or you will be getting a stat, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे टाइम बचता है। अगर आप एक टॉपिक को वैसे पढ़ने बैठ जाते हैं ना, बस लिख दें चैलेंजेस ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, आपके पास क्वालिटी मटेरियल के साथ साथ पुअर क्वालिटी मटेरियल भी आएगा, और आपको रीड करना पड़ेगा। आपके 1200 टैब्स आपके लैपटॉप में ओपन होंगे, और आपको समझ नहीं आएगी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, किस चीज को नोट करूँ, किसको ना करूँ, या आपको सब इम्पोर्टेंट लग रहा होगा, या आपको सब पूरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस सारों की, उस सब की क्वालिटी पे आपको डाउट हो रहा होगा, ठीक है। सो इस चीज को कैसे टैकल करना है, बहुत टारगेटेड रिसर्च करनी है। इसलिए सबसे पहले अपने ब्रेन को यूज करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो रेलेवेंट एरियाज हैं उनको नोट करें कि अच्छा अगर इंडो पैसिफिक की बात है, लेट्स सपोज चाइना यूएस की बात है, तो चाइना यूएस पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, अफगानिस्तान पे क्या डाल रहा है, चाइना यूएस में कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स हैं, चाइना यूएस कौन कौन से रीजन्स पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो क्या है, आई एम जस्ट थ्रोइंग यू आउट दीज पॉइंट्स। मुझे खुद भी शायद सारे की स्टेक होल्डर्स का अभी ना पता हो, लेकिन अब मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया जिसको मैं स्पेसिफिकली गूगल पे सर्च कर सकती हूँ कि व्हाट आर द की स्टेक होल्डर्स इन द यूएस चाइना, ठीक है, व्हाट आर द की प्लेयर्स, व्हाट आर द मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व इन द यूएस चाइना राइवलरी। तो क्या होगा, अदर देन यूएस चाइना कुछ रीजन होंगे जिनके बारे में वो आपको बता देगा, कुछ ग्रुप्स होंगे सच एज क्वाड, सच एज सम अदर ग्रुप, जो आपके सामने आ जाएगा। तो क्या है कि इंस्टेड कि आप उस पे कोई बहुत सारा उसको जेनेरिक कर दें, आपने स्पेसिफिक करके विद इन 15 मिनट्स यू आर गेटिंग द आंसर्स, ठीक है। तो इस तरह से करके आपने अपनी जो सर्च है उसको टारगेट करना है, ठीक है। एक और वे क्या हो सकता है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके आगे आप लिख दें डॉन आर्टिकल, तो जो भी मोस्ट रेलेवेंट डॉन के आर्टिकल्स है ना वो आपके पास आ जाएंगे। वहां से बस आपने चीजों को समझना होता है, एक्सप्रेशंस, हेडिंग्स उठानी होती हैं, और अपने वर्ड्स में उन चीजों को लिखना होता है। फिर रिसर्च मैगजीन्स आते हैं। रिसर्च मैगजीन्स को सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज के लिए यूज करना है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, करंट अफेयर्स इज very very strongly dependent on good headings। हेडिंग्स कैसी होनी चाहिए, एक्सप्लेनेटरी, वन वर्ड हेडिंग्स को मैं हाईली डिस्करेज करती हूँ। वन वर्ड्स की हेडिंग्स नहीं होंगी, कंपाउंड हेडिंग्स होंगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी, फ्लैशी होंगी, पढ़ने में अच्छी लगेंगी, ऐसे लगे कि बस आपने तो कोई फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल लिख दिया है पेपर में। बट होगा क्या कि आप फॉरेन अफेयर का मैगजीन जो है उसको आप एग्जैक्टली शायद आपको एक्सेस भी ना मिले, आप पढ़ भी ना सकें, लेकिन आपको एक समरी विजिबल होती है उस आर्टिकल की, आपको हेडिंग्स विजिबल होती हैं। वो हेडिंग्स आपको की स्टेक होल्डर्स का भी बता देती हैं कि कौन कौन से की एक्टर्स हैं, कौन कौन से की फैक्टर्स हैं जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है, और वो आपको एक समरी बता देती हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि उन रिसर्च मैगजीन्स के टाइटल्स को आप एज इट इज एग्जैक्टली जो है एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो, इम्प्लाइंग कि आपने वो आर्टिकल पढ़ा हुआ है, इवन अगर आपने सिर्फ वो समरी ही क्यों ना पढ़ी हो, ठीक है। तो रिसर्च मैगजीन्स को कैसे यूज करना है, एक तो अंडरस्टैंडिंग बनानी है,
उसके बाद उसके टाइटल को एज योर रेफरेंस यूज करना है, और जो समरी वो ऊपर 2-3 लाइनों में बता रहा है ना, वही उस टाइटल का क्रक्स होता है। तो उस क्रक्स को आपने या तो एज इट इज कोट करना है या उसको अपने वर्ड्स में कोट करना है, ठीक है, अपना पर्सपेक्टिव बनाने के लिए, अपनी एनालिटिकल अप्रोच दिखाने के लिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग that is important. Yes, pestle analysis आपके पास यही होता है। नासिर, यू ऑल्सो एग्जैक्टली राइट। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी डायमेंशंस को देखना है? हमने पॉलिटिकल डायमेंशंस को देखना है, इकोनॉमिक, वुमेन, जेंडर, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजिकल, और क्या होता है, क्राइम, इन्वायरमेंट। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको यही एनालिसिस जो है ना, आपको क्या करेगा, बता देगा, आपके लिए एक पूरा आंसर आपको प्रिपेयर करके दे देगा। और क्या होता है, सोशल, ठीक है, सोशल में क्राइम और बाकी चीजें भी आ जाती हैं। अच्छा, आईआर की कुछ थ्योरीज आपको हेल्प करेंगी, सोशियोलॉजी की थ्योरीज हेल्प करेंगी। अब जिसका आईआर का की डोमेन नहीं है, जिसकी सोशियोलॉजी डोमेन नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या करे, वो क्या करेगा, ग्लॉसरी जरूर पढ़नी है फॉर essay, फॉर करंट अफेयर्स पेपर, फॉर इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी, फॉर इम्प्रूविंग योर एक्सप्रेशन। अभी मुझे कोई कह रहा था कि आपका एक्सप्रेशन क्यों अच्छा है, रीड दोज टर्म्स। वो जो ग्लॉसरी है वो एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स ऑफ दैट टॉपिक होती हैं, वो आपको जो है एक बेनिफिट देती हैं, वो आपको एक कंपेटिटिव एज देती हैं ऑन योर कंपेटिटर्स, ठीक है, सॉरी, ऑन योर अदर फेलो पीयर्स, ठीक है। तो होता क्या है कि फॉर इंस्टेंस अगर हमने पाकिस्तान की गवर्नेंस इश्यूज पे बात करनी है, तो अगर आप एग्जैक्टली सोशियोलॉजी की टर्म यूज करेंगे ना, कि यू नो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड inefficiency exist करती है, so that is what, that is a sociological term that you're using, so it will create an impact, and how you're going to use it, you're going to use it as an heading, और आपकी वो हेडिंग, आपका वो एनालिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस होती है, आपकी वो हेडिंग्स जो आप बनाते हैं और जिनके अंडर आप पैराग्राफ्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो आपकी एनालिसिस, आपकी अप्रोच, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को रिप्रेजेंट करती है। और वो क्रिटिकल थिंकिंग किसकी होगी, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपका होगा, बाकी सारी क्रिटिकल थिंकिंग आपको ये आर्टिकल्स, ये राइटर्स, ये बुक्स, ये ऑथर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू शुड बी मूविंग। अब एक और चीज है, जैसे इफ यू आर रीडिंग इकोनॉमी, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, आपने इकोनॉमिकल टर्म्स से अपने आप को फेमिलियराइज करना होगा। बेस्ट वे अगेन इज यूट्यूब। यूट्यूब पे लिखें सारी टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स और उसकी एक्सप्लेनेशंस, वो आपको बताएगा, जो इजीएस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं वो आपको बताएगा। सो जब आप इन्फ्लेशन या इकोनॉमी पे अपना आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, देन यू हैव टू यूज दोज एग्जैक्ट टर्म्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेनेरिक टर्म्स। इसी तरह जब आप पाकिस्तान स्पेसिफिक क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, attempt कर रहे हैं, so what you're going to use, you are going to be using Pakistan specific laws, you're going to be using Pakistan specific structures। कि अगर इन्फ्लेशन की बात हो रही है या हमने मॉनिटरिंग सिस्टम की बात की, तो एग्जैक्ट कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं जो मॉनिटरिंग सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं। अगर एनवायरनमेंट की बात हो रही है, तो एग्जैक्ट क्या लॉज हैं पंजाब प्रोविंसेस में एनवायरनमेंट रिलेटेड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इस तरह से चीजों को आपने देखना है। सो यहाँ पे मैं इवन लेजिस्लेशंस लिख देती हूँ। तो अब आपकी सर्च क्या है, अब आपकी सर्च टारगेटेड है। अब जो भी टॉपिक है उसको आप ऐसे ही अंधाधुंध जो है ना वो रीड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को रीड करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर इंस्टेंस, आप सिर्फ ये कहेंगे कि व्हाट इज any important legislation that exists regarding inflation in Pakistan, तो
that is a very specific search. Any political measures taken by the government to tackle inflation in Pakistan, वो आपको 3 से 4 measures पता चल जाएंगे, ठीक है. तो this is targeted research. तो इस सारी whatever I told you people, इस सब का मकसद क्या था? इस सब का मकसद था to make your research targeted. ठीक है. अच्छा, सोर्सेज क्या कंसिडर करनी है? डोंट वरी, मैं हर ग्रुप में इनको शेयर कर दूंगी, ठीक है. देयर इज अ लॉन्ग 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 लिस्ट ऑफ सोर्सेज दैट आई हैव विद मी. डॉन का मैंने बता दिया है. जो है आपके पास कुछ जर्नल्स हैं जो पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं, वो इपरी है, ISSI है. फिर आपके पास है पैराडाइम शिफ्ट. आई हैव स्टार्टेड राइटिंग ओवर हियर एज वेल. और मैं ये जितनी भी क्यूरीज आपकी होती है ना, क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करें, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, आई विल पर्सनली बी राइटिंग दीज थिंग्स. और जो आपको करंट अफेयर रिलेटेड भी पैराडाइम शिफ्ट पे बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल जाता है. किसी भी इशू को आपने पढ़ना है, किसी भी इशू को आपने समझना है डिटेल के साथ, तो पैराडाइम शिफ्ट और PK पे आपको वो इश्यूज बहुत आसानी से मिल जाएंगे. अच्छा, एक और लास्ट जो मैं आपको हैक या ट्रिक है, वो ये है कि आपने ना जो भी आपके इश्यूज हैं, आपने अगेन उनको टारगेटेडली गूगल पे लिखना है. आप लिखें कि व्हाट डज फरीद ज़कारिया सेज अबाउट इंडो पैसिफिक डायनामिक्स. आप लिखें कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन आर्टिकल ऑन US इंडिया रिलेशंस. आप लिखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट ऑन लेट्स सपोज क्लाइमेट, ऑन एनवायरनमेंट. तो क्या है कि इस तरह के बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल अफेयर्स की बुक्स हैं, इसी तरह से पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं आपके पास. तो क्या होगा कि जब आप इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आपके सवाल का आंसर मिलेगा, इंस्टेड कि आप जेनेरिकली बस लिखें और उसके बाद जो है बस पढ़ते जाएं और आपको समझ रहा है कि आपने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना. ठीक है. यस, पाइड इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स. वहां पे आपको कभी अच्छा एनालिसिस भी मिल जाता है, अदरवाइज आपको वहां से अच्छे स्टैट्स मिल जाते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल, तारिक, आई एम जस्ट गोइंग टू लिस्ट डाउन, आई हैव एक्चुअली लिस्टेड देम डाउन, और मैं उसको जो है ना पाइड की बात कर रही हूँ. ठीक है. यस, अबूजर इज टॉकिंग अबाउट जार्गन्स. तो जार्गन्स आपको कौन बताएगा? ये जो आप ग्लॉसरी पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से आपको जार्गन्स पता चलेंगे. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा वकार, आपका कोई ओपिनियन नहीं होगा यार. आपसे किसने ओपिनियन पूछा है? आपको क्या पता है? ये मुझे क्या पता है कितनी बुक्स हमने पढ़ी हैं, क्या कुछ किया है ना. इन्फॉर्म्ड एनालिसिस इज व्हाट क्रिटिकल एनालिसिस इज अबाउट, और योर ओपिनियन इज अबाउट. समझ आइए बात की? Then specifically I need those magazines, तो मुझे शेयर करें ताकि मैं सबके साथ ग्रुप में शेयर कर दूं. नूर, बैकग्राउंड डिपेंड करता है आपने टॉपिक में देना है या नहीं देना. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ क्वेश्चन. समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी. जब भी लेकिन अपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो बहुत ज्यादा इधर उधर से स्टार्ट नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट. जो बात आपसे पूछी गई है वहीं से आपका उसी पे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए. फॉरेन अफेयर्स मैगजीन इज गुड, और इफ जैन शेयर्स दोज मैगजीन्स विद मी तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी. अच्छा, किसी ने कहा था कि टाइटल को कैसे यूज करना है. सोनिया भी पूछ रही है कि स्टैट्स को कैसे बताना है ना. तो इसी तरह से बताना है कि यू नो एक वो फॉरेन अफेयर्स का था आर्टिकल, तो मुझे याद नहीं आ रहा. अभी रिसेंटली एक बुक आई है उसकी, ग्राहम एलिसन की बुक थी ये, जब हम इसको US चाइना को देख रहे थे. तो ग्राहम एलिसन की बुक क्या कहती है? ग्राहम एलिसन की बुक है पता नहीं US चाइना समथिंग, कैन दे एस्केप द थ्यूसिडाइड्स ट्रैप. ठीक है. तो आप क्या कहेंगे कि ग्राहम एलिसन इन हिज बुक सो एंड सो इज ऑफ द सेम ओपिनियन दैट सो एंड सो, जो भी उसकी समरी होगी. ठीक है. इसी तरह से मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, कोल्ड पीस.
अब कोल्ड पीस इज अ वेरी गुड हेडिंग टू बी यूज्ड, और ये मलिहा लोधी का आर्टिकल था, तो आप क्या कहेंगे कि मलिहा लोधी इन हर आर्टिकल कोल्ड पीस स्टेट्स दैट this therefore this। तो आपने भी अपना एनालिसिस, अपना कंक्लूजन उसकी आर्टिकल की बेसिस पे निकाला, यानी एक इन्फॉर्म्ड रेफरेंस की बेसिस पे निकाला, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू कोट दीज थिंग्स। अकॉर्डिंग टू मलिहा लोधी हर बात में लिखना ठीक नहीं है, अभी जैसे मैंने बताया ना, आपको जरूर उस तरह करना है। अच्छा जी, कुछ बातें समझ में आई? ठीक है, बहुत सारी रेफरेंसेस हैं, वो सारे रेफरेंसेस जो है मैं शेयर करूंगी, डोंट वरी अबाउट दोस, ठीक है। लेकिन एनालिसिस बनाना कैसे, उन रेफरेंसेस को सर्च कैसे करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जो है ना, इट सेव्स योर टाइम। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। हैव यू पीपल गॉटन माई पॉइंट और नॉट? सोहेल, समझ आई है चीजों की? इज देयर एनी कंफ्यूजन? पूछें, सो दैट बाकियों को भी जो है कुछ मसला है तो वो भी क्लियर हो जाए। नोट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, लेकिन बार बार एक ही बात नहीं लिखनी ना। क्लियर हो गया? यस यस, यू कैन रीफ्रेज। आप एग्जैक्ट तो कभी भी आपको याद नहीं रहेगा। अब मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, उनमें एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे नहीं याद, बस आर्टिकल का नाम याद है और उसका क्रक्स याद है, तो क्रक्स ही को पढ़ना है। लेंथी नोट्स तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ कि आप लोग पहले लेंथी नोट्स बनाते हैं, फिर उनको शॉर्ट करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो नोट्स में क्या होना चाहिए, हेडिंग्स होनी चाहिए, वो आप बार बार देखें, और जितने अच्छे फ्रेजेस आपके माइंड में स्टोर हो सकते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको एंड पे हेल्प आउट करेगा। बाकी उन हेडिंग्स में सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स होंगे जो आपको नोट्स तो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, मैं भी आपको स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस दे दूंगी, तो नोट्स तो है ना। आपने उन नोट्स को बस 1 पेजेस बनाना है, जो इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस हैं उनको लिखना है, और एनालिसिस और इशू को समझने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा उसको ब्रेक डाउन करके समझेंगे उतना जो है ना, और बाकी जो एनालिसिस है, अगेन वकार आई एम रिपीटिंग दिस, एनालिसिस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थ्रू योर हेडिंग्स। नो नो, कोई जरूरत नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स लिखने की, आप रीफ्रेज में ही अपना रेफरेंस लिखेंगे, ठीक है। आपको जो रेफरेंस है ना, वो उस आर्टिकल, उस मैगजीन का नाम, उस राइटर ऑथर का नाम, वो आपका रेफरेंस है। बाकी उसने कहा क्या है, दैट इज समथिंग दैट यू विल पैराफ्रेज। Yes, headings, your primary headings, your secondary headings, and your references are important. Great, Noor. साथ आर्टिकल को का रेफरेंस कैसे लिखना है, इफ यू नो द एग्जैक्ट टाइटल ऑफ द आर्टिकल, तो वो आर्टिकल का टाइटल लिखो और बताओ कि राइटर इज ऑफ द सेम व्यू कि हमें ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या बताना है कि आपका व्यू जो है वो एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन पे बेस है, और आपका व्यू कोलैबोरेट हो रहा है थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स और राइटर्स और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। या फिर अगर आप राइटर नहीं भी लिखते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द आर्टिकल XYZ जो है let's suppose explains the same point, या आप कह सकते हैं provides the same crux that ABCD, जो भी आगे उसकी उसका एनालिसिस है। शाजेब, थैंक यू सुरानी, जजाकल्ला। शाजेब, इस तरह से है कि आइडियल नंबर ऑफ हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, दैट विल डिपेंड कि क्वेश्चन में आपसे क्या क्या पूछा गया है। अगर आपसे कॉजेज एंड रिकमेंडेशंस, लेट्स सपोज मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रही हूँ, आपसे पूछी गई हैं, तो for personally, if I suggest you people to I suggest writing 7 to 8 pages, but if you're writing 7 to 8 pages, please write down 7 to 8 pages for all questions, ठीक है। otherwise 6 to 7 pages तो minimum होने चाहिए, ठीक है, in my experience, because that matters। अच्छा, तो फिर हम आपके पास अगर 7 to 8 कॉजेज हैं, तो फिर इसी तरह से 6 to 7 रिकमेंडेशंस भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अ गुड नंबर ऑफ हेडिंग्स हैं। अगर आप
6 से 7 हेडिंग्स, 6 to 8 हेडिंग्स लिख देते हो तो बहुत है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि 20 हेडिंग्स लिख दो, 15 हेडिंग्स लिख दो, तो दैट मे नॉट बी इवन रियलिस्टिक। जज़ाकल्लाह उम्मे हबीबा। ठीक है बच्चों। So what you have to do is that these are some of the things that you people have to take care of. Acha, so this with this my class comes to an end. और रेफरेंसेस डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर, ठीक है, राइट आफ्टर द क्लास मैं आपके पास आपके साथ जो है ना डिटेल, जिसमें ऑथर्स भी होंगे, एनालिस्ट भी होंगे, मैगजीन्स भी होंगे, वेबसाइट्स भी होंगी, यूट्यूब चैनल्स भी होंगे, मैं वो रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब